Okay, today we will be going to solve some questions regarding electrical quantities and electrical circuits, right? So, starting with if we want to find out a current passing through any circuit, what is a current? Current is defined as the charge passing a point per unit time, and we can mathematically write it as like current equals to charge over time, which can be written as Q over T, right? Q over T. So if I have a question like this, Momin, can you hear my voice? Yes, sir. Okay. And you can see the screen as well. Yes, sir, I can. Okay. If I say current flows in an electrical circuit, साथ साथ लिखते भी जाएं. Electrical circuit, a charge of 2 coulombs passes a point in the circuit in 5 seconds. Calculate the current. Calculate the current flowing past that point. So first of all, we will look into this one uh, and we get to know which quantities are given and which we have to find it out. Right? So हमारे पास a charge of 2 coulombs. हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, 2 coulombs का चार्ज दिया हुआ है in an electrical circuit, pass a point in a circuit in 5 seconds. So we have to find out current. So it is very easy. Put all the values 2C over 5 seconds. It will be equals to how much? 0.4 amperes. If 0.4 ampere current is passing through that particular circuit, right? In part B, they are asking you a current of 3 amperes flows past another in the circuit in 10 seconds. How much charge passes the point passes the point in this time? Now, in part B, we have to know the charge. How much charge? Charge means you have to find Q. Q equals to I multiplied by T. What is I, by the way? I is 3 and time is 10. So the charge passing through, through that point in this time will be equals to 30 coulombs. So this is the first formula for electrical quantity. The name of the chapter is Electrical Quantities 4.2, right? 4.2. After it, if we have to solve another one, question number 2. A charge of 2 coulomb passes a point in a circuit
in 7 seconds. Calculate the current flowing past that point. So again, it's very simple. We have the value for charge. I equals to Q over T is the formula. So we have charge equals to how much? 2 coulombs, and the time is 7 seconds. So 2 over 7 will be equal to how much? जी मोमिन, 2 over 7 कितने के बराबर हो गया? जो भी वैल्यू Sir, आएगी. let me put it on calculator. So So it will be so 0.285. 0.28 amperes. So this is will be the value for current. So with the help of this very basic formula, we have solved two questions, right? इसमें कोई सवाल ऐसा Yes, जो sir. समझ में आया हो? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. We have discussed the concept of EMF and potential difference, right? So Yes. we have another concept. For example, they're asking you a lamp is connected to a battery, right, in a circuit, and a current flows, and the current flows. Calculate potential difference across the lamp. अब सर्किट में लैंप लगा हुआ है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस लैंप के अक्रॉस. ठीक है, उस लैंप Yes, के sir. अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. इफ 6 जूल of work are done when 2 coulombs of charge pass through the lamp. अब आपके पास इक्वेशन होती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V अगर आपको फाइंड आउट करना है तो V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q. W मीन्स वर्क डन. W means work done, right? So in order to find out potential difference across it, so V equals to how much work done? 6 joule. 6 joule divided by how many charges passing through it to the lamp is 2 coulombs. So 2 threes are 6. So volt, it will be equal to 3 joule per coulomb, and joule per coulomb will be equals to 1 volt. So it will be equal to 3 is equal to V is equal to 3 volts, right? V is equal to 3 volt, right? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी sir. Any problem? No, sir. Okay. Okay, now this part B. No, for part B, they are asking you if the potential difference across the lamp is increased. अब वोल्टेज क्या हो गए? बढ़ गए. कितने बढ़ गए? टू 5 वोल्ट, 5 वोल्ट तक लेके चले गए. And they are asking you calculate the energy transferred to the lamp. Transferred to the lamp. अब एनर्जी जो चार्जेस अब पास होते हैं किसी भी कंपोनेंट से, तो वो अपनी सारी एनर्जी
ट्रांसफर करते हैं किसको, उस कंपोनेंट को जिससे वो पास हो रहे हैं। तो कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द लैंप व्हेन अ करंट of 2 amperes flows in the lamp for 5 seconds। 5 सेकेंड तक अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता रहे। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है, हम अभी लिखा है हमने कि वोल्टेज बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है W अपॉन क्यू के। W को आप एनर्जी से भी इक्वलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मसला है कि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q, हाउ मेनी चार्जेस आर पासिंग। सो for charges passing, so the formula for the charge Q is equal to I multiply by T, right? Q is equal to I multiply by T. So I will be equals to how much? 2, and it is 5 seconds. So how much it is? 5 2s are 10. So 10 कूलम चार्ज हो गया। अब आप इसके अंदर पुट कर दो in order to find out the value of energy that is being transformed in a circuit. So 10 coulombs multiplied by how much voltage is, so it will be equals to 5 tens are 50, and the unit for the work done, जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर, हो गई। पक्की बात है ना? जी सर। Okay, now the next one. The potential difference across a lamp is 6 volt. Find the work done. Find the work done when a current of 6 ampere flows in the lamp for 10 seconds. Right? अब potential difference आपके पास, so how much potential difference? सर V इज इक्वल टू। इधर आना। V is equal to 6 volts, right? जी सर। And how much work is done? We want to find out सर। work, right? यस सर। Current is how much? 3 amperes, and the time is 10 seconds. Time is 10 seconds. So formula for the potential difference is V is equal to W upon Q. So we need to find W. So W will be equals to V multiplied by Q, but we don't know the value of Q here. So Q equals to how much? I multiplied by T. So I is equal to 3, and it will be 10. So it will be 30 coulombs. Then 30 coulombs will be put here. V is equal to 6, and the तो कितना हो जाएगा वर्क डन? 180 सर 180। joules. Copy it down. डन सर, हो गया। Done, moment. जी
सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं ये सारे अब तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, वर्कड एग्जाम्पल. सर आ रहे हैं सर। Okay, now we will go to third one, third formula, which is very important. Ohm's law. You know Ohm's law is V equals to V is equal to IR. I by V is the voltage, I is the current, and R is the current resistance. resistance. R is the resistance. Resistance. In question number 1, they're asking you the current flowing through a resistor is 0.30 amperes when a potential difference of 4.5 volts is applied across it. Calculate the value of resistor. What is resistor, by the way? Yes, Sir, it is resistor. an electrical component through which Hmm. we can increase or decrease the resistance in a circuit by varying the current flow. If we increase the resistance of a circuit, the current will decrease or increase? It will decrease. It will decrease, right? Resistance के बढ़ने Yes. पर करंट हमेशा क्या होगा? कम होगा. रेजिस्टेंस जब Come on. बढ़ेगी तो करंट क्या होगा? कम होगा. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. वी हैव द करंट, वैल्यू ऑफ करंट विच इज इक्वल टू, कैलकुलेटर हाथ में रखना, 0.30 amperes, and voltage is 4.5. We need to find out R. So formula for the Ohm's law is V is equals to IR. So V equals to 4.5 and I is 0.30. Need to find out R. So what is R? 4.5 divided by करो 0.30, क्या वैल्यू आ रही है? कितने ओम्स आ रहे हैं? मोमिन कैलकुलेट कर दें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. मोमिन, कैन यू Sir, हेयर मी? 15 ohms आ रहे हैं. बेटा तो Sir, जल्दी बताए 15 ना. ohms. 15 का? आप कैलकुलेटर नहीं है क्या? Sir. आपके मोबाइल मोबाइल से कर रहे हैं? नहीं सर है. तो जल्दी जल्दी बताएं वैल्यू. 15 ohms इज द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर, राइट? ओके, Yes sir. नेक्स्ट वन. इसका सॉल्व करो ना मैम ने। मैं कर लूंगा बस मोमिन क्वेश्चन. उसने एंड पे ना आपसे ना वो स्क्रीन A potential difference of 12 volts is applied across a lamp of across a lamp of 24 ohms, and the lamp lights up. ठीक है, आपको 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लैंप पे वो 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, उस लैंप की रेजिस्टेंस 24 ओम है, और लैंप जो है वो चलना शुरू हो जाता है. कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द लैंप. अब आप देख लो कि आपको गिवन क्या है और मालूम क्या करना है. ठीक है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12 वोल्ट. ठीक है, रेजिस्टेंस आपके पास 24 है, और आपको निकालना है करंट. यू हैव टू फाइंड आउट करंट. सो V इज इक्वल्स टू IR. V आ गया 12 और रेजिस्टेंस आ गई 24, और
So 12 ones are 12, 12 twos are 24. So the resistance will be half ohms, 0.5 ohms. ठीक है, ये आपके पास आ गई. Okay, sir. सर ये 0.5 एम्पेयर्स होगा ना? क्यों भाई, एम्पेयर्स क्यों होगा? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ओम्स में होती है, एम्पेयर्स तो करंट के लिए होता है. क्या हो गया मोमेंट? जी सर, ठीक. Now the नहीं सर, ठीक है, आगे चलिए. the formula of power now, right? So we have another one. कहता है small electric motor attached to a 12-volt supply has a current of 0.3 amps passing through it. Passing through it. Now, in part A, you have to calculate the power of motor in watts. We all know कि पावर जब भी कैलकुलेट होती है तो इसका ऐसा यूनिट वॉट्स होता है. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. सो पावर निकालनी है. वोल्टेज आपको कितने दिए? मैं 12. और करंट आपको कितना दिया हुआ है? 0.3. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करो, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ. 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3. कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर. सर ये आ रहा है 3.6. 3.6 वॉट्स. ठीक है, 3.6 वॉट्स आपके पास पावर आ गई. ठीक है, इन पार्ट टू गिव द पावर. ओके, पहले यहाँ तक कॉपी कर लें. सर कैन यू हियर मी? सर कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू. Sir, you can you repeat it again the question because suddenly the net connection disconnected. The next one, Yes, sir. how much energy is transferred to the motor in 1 minute, right? We have another formula for the power is P is equal to E upon T, right? So we need to find E. So the formula will be like this: P multiplied by T equals to E. So E equals to how much power we have calculated? 3.6.
and 1 minute equals to 60 seconds. Multiply by 60, so it will be equals to 216 joules. 216 joules. तो एनर्जी का भी फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि जब आपको एनर्जी ट्रांसफर्ड निकालनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई अपॉन टी भी होता है. ओके सर, ओके सर। सर आगे समझो। क्लियर हो गई बात? जी सर। Okay, now if you want to find out the cost of electricity, right? Cost of electricity, उसके लिए एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं मैं. कहता है कि if the price of 1 किलोवाट, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं तो जो पावर का यूनिट ग्रेटर लार्जर यूनिट होता है पावर का, वो होता है किलोवाट आवर. क्या होता है? किलोवाट आवर. सो इफ द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 10 सेंट्स, यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का 10 सेंट्स के बराबर है. सो हाउ मच will it cost to use a 3000 watt electric heater for 3 hours? अगर वो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि 3000 वॉट्स का है, अगर वो 3 घंटे तक चलता रहता है, तो बताएं कि क्या कॉस्ट आएगी, कितने सेंट्स पे करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले तो मोमेंट वी हैव टू कन्वर्ट वॉट्स इनटू किलो वॉट्स, राइट? तो हमें पावर कितनी दी हुई है? पावर हमें कितनी दी हुई है? 3000 वॉट. 3000 वॉट्स का मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू 3 किलो वॉट्स. इक्वल्स टू 3 किलोवॉट्स, राइट? ओके. जी सो सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है ना आपको, तो इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा. तो पावर कितना है? 3 किलोवाट. और टाइम आपने आवर्स में ही रखना है. वो जो कितना आ रहा है? 3 आवर्स. सो ई विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 3 3 9 किलोवाट आवर. यानी 9 किलोवाट आवर की एनर्जी कंजम्पशन हो रही है इफ इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 3000 वॉट्स और 3 किलोवाट्स इज रनिंग फॉर 3 आवर्स, राइट? नाउ अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. कॉस्ट कितनी बनेगी जो हमें पे करनी है? इसके लिए कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर, वो आप देख लो कि 1 किलोवाट कितने, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 सेंट के बराबर है. तो 9 किलोवाट कितने के बराबर होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 सेंट से. तो हाउ मच इट विल बी इक्वल्स टू 90 सेंट्स. यानी आपको 90 सेंट्स पे करने पड़ेंगे. तो जब आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो तो इस तरह से निकालते हो. ठीक है? सर ये जो P मल्टीप्लाई बाय T वाला फॉर्मूला है, ये जरा दोबारा समझा दें सर। E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। जब एनर्जी निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एनर्जी कंजम्पशन के लिए या एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला निकालते हो, लगाते हो, वो E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है. पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम। ठीक है? सर ये उसी से ड्राइव है ना, P इज उसी, इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T से जी ड्राइव्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी से ड्राइव्ड है. उसी से ड्राइव. मैं अब नमाज के लिए जा रहा हूँ. ओके सर। नमाज के मैं 15 से 20 मिनट्स में आ रहा हूँ, यानी 6 पर आ रहा हूँ आपके पास. ठीक है? ठीक वरना है नमाज सर। निकल जाएगी. क्लास यहीं पर है, आप जितना भी कर रहे हैं उसको देख लें. मैं बल्कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप करें बैठ के अभी.
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिख तो नहीं रहा, ये आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये रहा। ये दो सवाल आपने करने, क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है। सर एक सेकंड मैं लिख लूँ। नहीं, ये स्क्रीन पे सर मौजूद रहेगा इन दोनों जी जी। चलें ठीक है।
सर वो जो पिछले टेस्ट था उसका कब तक आप चेक करके देंगे? उसमें दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी मुझे हाँ, जरा। वो आपको इसलिए कंफ्यूजन थी क्योंकि वो आपको आपने अभी किया नहीं था, ठीक है, तो वो आप उसकी टेंशन छोड़ दें। अभी इसीलिए आज ये ठीक क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको वो वाले सवाल खुद ही समझ आ जाएं फिर, ठीक है। ठीक है So सर। starting with the 4.3 component, which is electric circuits. So when we arrange resistors in a series arrangement, so how we can arrange it? It's a one resistor, this is a second one, this is a third one, right? Both are on the same line. If this is R1, this is R2, and this is R3, right? Current entering from here leaves from here. Current entering from one end leaves from the other end, right? So the voltage drop on each resistor will be different in series. It depends on the value of the resistor. जितना ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। V1, V1, V2, V3. It means if we want to find out the total voltage, so we will add all the values of voltage, right? V1 plus V2 plus V3. In series, always remember this. In series, current is same because there is only one path for the current to flow. Current is same, but voltages are different. Voltages are different. सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं वैल्यू ऑफ रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन सब पर मोमेंट हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर। सो वी किसके बराबर हो गया, आई आर। V1 किसके बराबर हो गया, IR1। V2 किसके बराबर हो गया, IR2। V3 किसके बराबर हो गया, IR3। वाई इज दैट, बिकॉज करंट इज सेम, सो हमने I1 I2 I3 नहीं लिखा, हमने टोटल करंट I लिखा है, ठीक है। आई कैन टेक कॉमन हेयर एंड इट विल बी लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई खल्लास, तो टोटल आपके पास आर टी, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ जी तक बात सर। clear हो गई। अब हम एक सवाल करते हैं, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अ 4.5 वोल्ट बैटरी is connected across three resistors, across three resistors of values 3 ohm, 4 ohm and 5 ohms, connected in series। तीन रेजिस्टर्स हैं, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का है। ये सब के सब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, जैसे कि ऊपर डायग्राम बनी हुई ना इसमें। अब वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। अब करंट कितना इन रेजिस्टर्स में से पास हो रहा है, ये आई फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई। अब मोमेंट यू मस्ट नो दिस, कि हमें सबसे पहले ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी, या टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की निकालनी। आर टी किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आर टी इक्वल्स टू R1 कितना है आपके पास, 3 ओम, R2 4 ओम है, R3 5 ओम है, तो टोटल कितना हो गया, 9। और 9 और 3 12, 12 ओम की टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो अब मैं सर्किट को ना सिंपल एक रेजिस्टर के साथ लिख सकता हूँ। ये मैं, अगर ये तीन यूज हुए हुए थे ना सर्किट के अंदर, मैंने क्या करा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, आर टी आ गई कितना, 12 ओम्स। कितना आ गया, 12 ओम्स। तो पहला तो काम ये हो गया। अच्छा, अब एक बात और गौर करो, कि जो वोल्टेज इन्होंने दिए हुए हमें, वो कितने दिए हुए, 4.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है।
4.5 वोल्ट की बैटरी इन्होंने कनेक्ट की हुई है, 4.5 वोल्ट की। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, करंट निकालो। सर्किट के अंदर जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो करंट आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको सारे क्लास ने फॉर्मूला बताया हुआ है V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का। क्या लगाया हुआ फॉर्म, बताया हुआ फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। सो इट विल बी 4.5, I इज अननोन, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है, 12। ठीक है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू I। सो I विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0.38 एम्पियर्स, 0.38 एम्पियर्स। Okay, sir. Okay, now in part B, uh, calculate potential difference across 4 ohm resistor। अब आपको पता है कि सीरीज के अंदर वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं, तो वो कह रहा है 4 ओम पे जो जी सर। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है, 4 ओम वाला। तो आपको पता है कि आप सीरीज में तो करंट सेम होता है। आर दूसरा रजिस्टर है ना ये 4 ओम, तो इसको आपने क्या ले लिया, जी सर। आपने इसको 4 ओम ले लिया। ठीक है, ये आपका 4 ओम जी हो सर। गया। और वोल्टेज आपको पता है वो आपको निकालने हैं। करंट आपको पता है कि सेम ही रहेगा, करंट हमने कितना निकाला हुआ है, 0.38 एम्पियर। 0.3। हाँ, अब आपको V2 निकालना है। तो आपने सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है V2 इज इक्वल टू IR2, आई क्यों ऐसे ही रहेगा। तो आपको V2 इक्वल्स टू I का मतलब क्या है, I का कितना निकाला है, 0.38 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है, 4 ओम, क्योंकि 4 ओम पे पूछा गया है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.5 वोल्ट। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई V3 निकालो, तो आप क्या कहते, IR3 करते। V3 इज इक्वल टू आई कितना है, 0.38, और R3 आपके पास कितना है, R3 आपके पास कितना है, 5 ओम्स। R3 कितना है, 5 ओम। तो 5 ओम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 0.38 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो आंसर आया आपका 1.9 ओम्स, ओ सॉरी 1.9 वोल्ट्स। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ V1 निकालो, तो V1 के लिए R1 आपके पास कितना है, R1 आपके पास 3 ओम्स है, R1 कितना है, 3 ओम्स। जी सर। तो मैंने 3 क्या ohms। करा, I R1, ठीक है, IR1। तो V1 इक्वल्स टू I कितना है आपके पास, 0.38, R1 आपके पास कितना है, 3। तो V1 इज इक्वल टू, जी अब आप सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.38 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बी इक्वल टू 1.14 वोल्ट्स। अब मैं ये चेक, मुझे ये पता चलाना है कि भाई मैंने तीनों वोल्टेजेस सही निकाले हुए हैं। पहले तो ये देखो कि सर का सबसे, सम 4.5 होना चाहिए। जी इसका सम 4.5 होना चाहिए, वेरी गुड। और देखो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पर हो रहे हैं, 5 ओम के रजिस्टर पे सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, 1.9, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। नहीं सर, वो बड़ा है, हाँ बड़ा रजिस्टर है, कुछ हाँ ज्यादा ठीक है। तो टोटल वोल्टेज आ गया 1.14, उसको अगर आप कर भी लें प्लस, ताकि तसल्ली हो जाए कि हमने सही किया है नहीं किया है। तो आप क्या करो, 1.14 प्लस 1.5 प्लस 1.9, तो इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 4.5 वोल्ट्स। ठीक है, और 4.5 वोल्ट की ही बैटरी लगी हुई थी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कैलकुलेशन बेहतरीन है, है। राइट। सही। तो आज की जी सर। क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एग्जाम्पल्स किए हैं। ये देखो तुम्हारे सामने सारा ये है। तो ये आज हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से शुरू किया है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का भी मैंने सिर्फ सीरीज वाला पार्ट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो पैरेलल वाला, यानी कल की क्लास में आपको पैरेलल वाला भी मैं करवा दूंगा। इसकी सर पिक्चर्स परसों होगी ना अगली? परसों, परसों है तो परसों होगी, हाँ जुम्मा नहीं है ना, अब तो हफ्ता है, ठीक है। अब हफ्ते को क्लास होगी, ठीक सर है। इतवार है, इतवार है, अगली इतवार। ठीक है, वो मैं सर बता एक से मैंने दूंगा। टाइम टेबल देख ली। हाँ वो मैं बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास। सर जुम्मे को है, मैंने देखा टाइम टेबल।